Hello everybody. Today's video is going to be all about right triangles. So when we discuss right triangles, the first and the foremost concept that we need to know is Pythagorean theorem. And what does this theorem states? According to Pythagorean theorem, in a right triangle, the square of the length of hypotenuse is equal to the sum of the squares of the length of two other sides. अब हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि hypotenuse क्या है. Hypotenuse is basically a side that is opposite to the 90 degrees angle, and we call this side the longest side. हाइपोटेन्यूज जो होता है वो हमारी सबसे बड़ी साइड होती है, और इसकी रीज़न हम लोगों ने ट्राइंगल्स में पहले डिस्कस किया था कि द साइड ऑपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल इज द लॉन्गेस्ट साइड. So since in the case of a right triangle, 90 degrees is the largest angle, so that implies the side opposite to the 90 degrees would be the largest side. So hypotenuse is the longest side of a triangle. And according to a Pythagorean theorem, hypotenuse square is equal to the square of perpendicular plus the square of the base. तो ये फॉर्मूला हम कब अप्लाई कर सकते हैं? ओनली व्हेन वी हैव गॉट अ राइट ट्राइंगल. ठीक है. अब अगर आपके पास कोई भी दो साइड्स गिवन है तो यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द थर्ड साइड, बट ओनली इन द केस ऑफ राइट ट्राइंगल्स. लेट अस गो अबाउट एन एग्जांपल. नाउ दिस इज एन एग्जांपल दैट वी हैव. हमारे पास इसमें दिस इज आवर परपेंडिकुलर और इसकी साइड गिवन है दैट इट इज़ 1, और दिस इज आवर बेस. एंड व्हाई इज इट द बेस? एंड वी डिस्कस अबाउट दिस इन द प्रीवियस वीडियो कि आपकी जो भी हाइट होगी, ठीक है, वो जिस वर्टेक्स से एक्सटेंड कर रही है और जिस साइड के ऊपर जाके टच करती है, दैट साइड इज योर बेस. सो इन दिस ट्राइंगल दिस इज आवर बेस, दिस इज द हाइट दैट यू कैन ऑल्सो कॉल परपेंडिकुलर, एंड दिस इज द hypotenuse. And we need to find this. ठीक है. तो we'll just be using this formula. This formula states that hypotenuse is equal to the square of perpendicular plus the square of the base. C square is equal to 1 plus 4 and C is equal to under root 5. Now we can also verify the rule that said that the length of the third side is less than the sum of other two sides and it is greater than their difference. So is that true? C is equal to under root 5, that I guess is something 2 point something, right? 2 minus 1 gives us 1 and 1 plus 2 gives us 3. Whereas C is 2 point something. So that implies that this triangle with these sides 1, 2 and under root 5 is a right triangle. Next we have got another example. Again we are given with the height, we are given with the base, and we need to calculate the hypotenuse. How would we go about it? C square would be equal to the sum of the square of perpendicular plus the square of the base. This implies C square is equal to 9 plus 9, C square is equal to 18, and C is equal to under root 18. And now you can verify it on your own. If under root 18 is greater than 3 minus 3 and is less than 3 plus 3. This is your task. You need to verify it. Now we would be discussing a special category of right triangles, that is a triangle with ratio 30, 60, 90. Previously, we discussed the relationship between the value of the angle measurement and the length of the side opposite that angle measurement. What was that relationship?
अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है एंड लेट्स से दिस इज योर लार्जेस्ट एंगल, ठीक है, अगर ये सबसे बड़ा एंगल है तो दैट इम्प्लाइज द साइड ऑपोजिट, द ऑपोजिट साइड वुड बी द लॉन्गेस्ट वन, एंड इफ दिस इज योर स्मॉलेस्ट एंगल तो इसका मतलब है कि इसकी ऑपोजिट side would be the shortest side. But now we have got a more concrete relationship between the angle measurements and the side lengths. But this relationship exists only for right triangles with angle measurements of 30, 60, 90 and 45, 45, 90. अब हम पहले 30, 60, 90 को डिस्कस करते हैं. So it states if you take an equilateral triangle. अब equilateral triangle क्या होता है? With same sides and same angles. और तीनों angles equilateral triangle के 60, 60, 60 होते हैं. This is our equilateral triangle. इसका मतलब है ये एंगल भी 60 का होगा, ये भी 60 का होगा और ये भी 60 का होगा. और साइड्स हमारी 2x, 2x, 2x होगी. And draw in the height. अब height क्या है? That is a perpendicular line extended from one vertex to the base. ठीक है. अब यहाँ पे अगर हम हाइट ड्रॉ करें, नेक्स्ट इट सेज यू एंड अप कटिंग इट इन हाफ एंड क्रिएटिंग अ राइट ट्राइंगल. अब इसका क्या मतलब है कि अब हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी है, ठीक है, तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन जाते हैं इस तरह से, ठीक है. अब जो बात नोट करने वाली ये है कि इसमें और इनमें फ़र्क कहाँ पे आता है, ठीक है. This 60 would be 60 here as well, ठीक है. ये 60 यहाँ पे 60 रह जाएगा, ठीक है. और since it's a perpendicular bisector तो ये आपके पास एक 90 डिग्रीज का एंगल बन गया और ये 90 डिग्रीज का, ठीक है. फर्क कहाँ पर आए? ये 60 डिग्री एंगल जो आपका था ये स्प्लिट हो गया, ठीक है. यानी इफ दिस वाज 60 तो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया जिसने इसको दो टुकड़ों में बांट दिया. नाउ दिस वुड बी 30 डिग्रीज एंड दिस वुड बी 30 डिग्रीज. तो इन दोनों का मेजर क्या होगा? 30 एंड दिस वुड बी 30 एज वेल. नाउ डू यू सी एनी चेंजेस इन द साइड्स? हाइपोटेन्यूज में तो कोई फर्क नहीं आ रहा, ये भी 2x है, ये भी 2x है, लेकिन इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने इस बेस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, ठीक है. पहले इसकी लेंथ थी 2x, लेकिन इसको डिवाइड करने के बाद ये आपकी लेंथ होगी x और ये हमारी लेंथ होगी x, ठीक है. नाउ द स्मॉलेस्ट एंगल एट द टॉप opposite to the shortest side, this is our shortest side, is 30 degrees. So the ratio of the sides on a 30, 60, 90 triangle is x, x under root 3 and 2x. ठीक है. अच्छा, अब इस इक्विलेटरल ट्राइंगल को हमने स्प्लिट किया है, ठीक है. तो हमें क्या मिले? दो राइट ट्राइंगल्स. हम लोगों ने कंसिडर किया ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल ECD, ठीक है. तो एक हमें ये तो पता था कि ये जो है लेंथ आपके पास है, हाइपोटेन्यूज इज 2x, ठीक है, और हाफ ऑफ द बेस दिस इज x, वी ऑल्सो न्यू दिस. लेकिन हाइट हमें कैसे मिली है? नाउ अब हम लोग यहाँ पर पाइथागोरियन थ्योरम को भी वेरीफाई कर सकते हैं. दैट सेज दैट द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ द बेस, ठीक है. तो हाइपोटेन्यूज क्या है? 2x, 2x का स्क्वायर लिया, बेस x का स्क्वायर लिया और यहाँ से z फाइंड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है. और अपॉन सिंप्लीफिकेशन वी हैव गॉट दिस z इज इक्वल टू अंडर 3x. और यहाँ से जो आपकी रेशियो है 30, 60, 90, हमें पता चलता है कि जो 30 के ऑपोजिट वाला एंगल है दैट इज x, 60 के ऑपोजिट वाला एंगल इज अंडर रूट 3x और 90 के ऑपोजिट वाला एंगल इज 2x, ठीक है. नाउ व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस? अगर एग्जाम में इफ यू स्पॉट अ हाइपोटेन्यूज दैट इज डबल वन ऑफ द लेग्स और यू सी अंडर रूट 3 एनीवेयर, देन यू नो व्हाट यू नीड टू लुक फॉर, ठीक है. अब यहाँ पे अगर हम देखें, लेट्स से आपके पास एक सिर्फ ये साइड गिवन होती या ये गिवन होती. अब यहाँ से इट इज़ अपेरेंट, एक तो हमें ये पता है कि इट्स अ राइट ट्राइंगल, ठीक है.
और उसके बाद हमें ये पता नज़र आ रहा है कि हाइपोटेन्यूज जो है दैट इज़ द डबल ऑफ दिस एक्स, ठीक है, किसी भी एक साइड का डबल नज़र आ रहा है हमें। तो इसका ये मतलब है कि आप सिंपली थर्ड साइड को फाइंड करने के लिए ये रेशियो का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ऑल्सो अगर आपको कहीं पे भी अंडर 3 नज़र आ जाता है तब भी हमें ये पता चल जाएगा कि इट्स अ 30-60-90 रेशियो ट्राइंगल। नाउ लेट अस गो ओवर सम एग्जांपल्स, ठीक है। अब अगर आपके पास एक सिंपल ट्राइंगल है, हमें एंगल गिवन है, दिस इज 30, दिस इज 90, एंड इफ दे आस्क व्हाट इज द थर्ड एंगल, तो एक बात अगर ये देखें कि 90 प्लस 30 प्लस द थर्ड एंगल दे मस्ट एड अप टू 180 डिग्रीज। So from here it is clear that the third side is 60। और ये करने की ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि अगर आपके दो एंगल्स 30 है एक 90 है तो डेफिनेटली द थर्ड एंगल will be 60। Then we have another example। अब इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है कि हमें ये एंगल बता दिया कि दिस इज़ 90, दिस इज़ 30। अब अगर ये 90 है ये 30 है तो दिस वन हैज़ टू बी 60 डिग्रीज। और यहाँ से हमें क्या रेशियो मिल गई है 30, 60, 90। So this implies the side opposite to the 30 degrees would be x. The side opposite to the 60 degrees would be x under root 3 and the side opposite to the 90 degrees would be 2x। और ये हमेशा रेशियो यही रहेगी जब भी आपके पास 30, 60, 90 का आपको ट्राइंगल राइट ट्राइंगल मिले, ठीक है। नाउ हमारे पास गिवन कौन सी साइड है 30 के ऑपोजिट वाली, दैट इज 5 अंडर रूट 3। 30 के ऑपोजिट क्या मिल रहा है आपको x, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 5 अंडर रूट 3। अब यूजिंग दिस x वी कैन फाइंड दिस एंड दिस, ठीक है। तो 90 के ऑपोजिट वाली साइड एक हमने ये फाइंड करनी है और एक ये फाइंड करनी है। 90 के ऑपोजिट वाली साइड क्या कहती है 2x, तो इसका क्या मतलब है दिस वुड बी इक्वल टू 2 इंटू 5 अंडर रूट 3 यानी 10 अंडर रूट 3। हमें एक साइड मिल गई है दिस इज 10 अंडर रूट 3। और अब हमें क्या फाइंड करना है 60 के ऑपोजिट वाली साइड। अब 60 के अगेंस्ट हमारे पास क्या है x अंडर रूट 3। x क्या चीज़ है 5 अंडर रूट 3, वी नीड टू मल्टीप्लाई विद अंडर रूट 3। यहाँ से क्या आ जाएगा 5 अंडर रूट 3 स्क्वायर दैट इज 15। यहाँ से आपके पास ये साइड 15 आ गई। अब वरना अगर आपको 30, 60, 90 की रेशियो ना होती तो ये साइड्स फाइंड करना पॉसिबल नहीं था। लेकिन अब हमें ये पता था कि ये आपका एंगल 30 है, ये 60 है, 90 है, और हमें ये भी पता है कि इनके ऑपोजिट ये साइड्स हैं, तो वी सिंपली वर्क इट आउट। लेकिन इसके अलावा इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट। नेक्स्ट वी हैव अनदर एग्जांपल। अब इस एग्जांपल में क्या हो रहा है कि हमें एक 60 डिग्रीज का एंगल गिवन है, एक 90 का। अगेन अगर एक 60 का एक 90 का है तो द थर्ड वन हैज़ टू बी ऑफ 30 डिग्रीज, ठीक है। फिर से हम वही 30, 60, 90 की रेशियो लगाते हैं। दिस वुड बी x, दिस वुड बी x अंडर रूट 3, दिस वुड बी 2x। अब हमें किसके अगेंस्ट गिवन है 60 के ऑपोजिट वाली, यानी 60 के ऑपोजिट आपकी साइड है 2 अंडर रूट 3। दिस इम्प्लाइज x अंडर रूट 3 वुड बी इक्वल टू 2 अंडर रूट 3। और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। तो 30 के ऑपोजिट आपके पास x है, तो इसका क्या मतलब है कि ये साइड आपकी होगी 2। और अब हमें 90 के ऑपोजिट वाली ये साइड फाइंड करनी है। 90 के ऑपोजिट वी हैव 2x एंड x इज 2, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4। ये आपके पास 4 हो गया। Now we have another category of right triangles, that is a 45, 45, 90 ratio right triangle. So what does it say? If you take a square and cut it in half along its diagonal, you create an isosceles right triangle. The two sides of the square stay the same. अब इसमें आपने क्या किया कि आपने एक स्क्वायर लिया। स्क्वायर में हमारे
एंगल्स जो होते हैं ना, दे आर ऑल 90 एंड दे ऑल एड अप टू 360. ठीक है, तो हमारे सारे एंगल्स 90 के हो गए. ठीक है, नाउ दे आर सेइंग इफ वी कट इट इन हाफ अलोंग इट्स डायगोनल. अगर आप इसको इस तरह से कट कर लें या उस तरह से भी कट कर लें, इस तरह से भी कट कर सकते हैं, इट्स द सेम. तो क्या होगा कि अगर हमने इसको हाफ कट कर दिए तो यहाँ से आपका 90 डिग्रीज़ का एंगल जो है वो स्प्लिट हो जाएगा. ये भी 45 का बन जाएगा, ये भी 45 का बन जाएगा. यहाँ से भी 45, यहाँ से भी 45, whereas the rest of the two angles would remain same. तो हमारे पास किस तरह के दो ट्राइंगल्स बन जाते हैं, एक इस तरह से बन जाता है और एक इस तरह से बन जाता है. ठीक है, अब सिंस इट्स अ स्क्वायर तो इसका मतलब है कि हमारी सारी साइड्स भी सेम होंगी. साइड्स पे कोई फर्क पड़ रहा है? साइड्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. दिस वुड बी एक्स, दिस वुड बी एक्स, दिस वुड बी एक्स, दिस वुड बी एक्स. ये आपका 90 डिग्रीज का एंगल है. ठीक है, एंड दीज टू आर 45. अगेन अब हम लोग इसको फाइंड करने के लिए, हाइपोटेन्यूज को फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरियन थ्योरम लगा सकते हैं. दैट वुड बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर एंड c वुड बी इक्वल टू x अंडर रूट 2. तो यानी कि ये वाला जो आपका पोर्शन है, दिस वुड बी, सॉरी दिस साइड, दैट वुड बी x अंडर रूट 2. तो द रेशियो ऑफ द साइड्स इन अ राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल इज x अंडर रूट 2. ये आपका x जो है वो किसके ऑपोजिट है? 45 एंड x अंडर रूट 2 90 के ऑपोजिट है. ठीक है, तो हम लोगों ने क्या नोट किया है कि अगर हम एक स्क्वायर लें, ठीक है, डायगोनल के अलॉन्ग उसको आप कट करें तो हमारे पास आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल बन जाता है. आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल कौन सा होता है? जिसमें आपकी दो साइड्स सेम हो, और जो दो साइड सेम होती हैं उनके ऑपोजिट एंगल्स भी सेम होते हैं. ठीक है, तो the ratio of the sides in a right isosceles triangle is this. Now we would be using this in the questions. The significance of this 45, 45, 90 right triangle is that कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में if you see the two same sides, ठीक है, तो आपको पता होगा कि आपने ये वाली रेशियो वहाँ पे यूज़ करनी है in order to simplify it. और इसके अलावा अगर आपको कहीं भी अंडर रूट 2 नज़र आ जाता है तो फिर भी आपको पता होना चाहिए कि 45, 45, 90 रेशियो से रिलेटेड है. वेयर एज इफ़ यू सी अंडर रूट 3 समवेयर तो वो हमारा 30, 60, 90 रेशियो से रिलेटेड था. ठीक है, बट नाउ फ़र्क हमारा क्या है 30, 60, 90 रेशियो में? बाय द वे बोथ आर राइट ट्राइंगल्स हो, लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपने क्या देखना है किसी क्वेश्चन में कि अगर एक साइड आपकी किसी और साइड के डबल हो तो यू नो दैट दिस इज़ अ 30, 60, 90 रेशियो राइट ट्राइंगल. अदर देन दैट अगर आपको ये नज़र आ जाए कहीं पे अंडर रूट 3 तो स्टिल आपको पता होना चाहिए कि इट्स अ 30, 60, 90 रेशियो राइट ट्राइंगल. और उसके बाद अगर आपको किसी ट्राइंगल में दो साइड्स सेम मिल जाए x, तो again you know that it's a 45, 45, 90 ratio right triangle. Other than that, if you see under root 2 anywhere, then you would be aware that it's a 45, 45, 90 ratio right triangle as well. Now let us solve a few questions. Now look at these examples. The very first example, we are given with two measures. एक आपके पास ये 90 एंगल है और ये 45 डिग्रीज है. यू हैव टू फाइंड द थर्ड वन. अब हमें पता है कि अगर एक एंगल आपके पास 90 है, एक 45 है, तो द थर्ड वन हैज़ टू बी 45 डिग्रीज. यू डोंट नीड टू गो अबाउट 45 प्लस x प्लस 90 इज इक्वल टू 180. और इस कैलकुलेशन से बचने के लिए ही हमारे पास ये रेशियो एग्जिस्ट करती है 45, 45, 90. इसका मतलब है अगर आपके पास एक गिवन दो 45 के होंगे तो थर्ड वन हैज़ टू बी 90 नो मैटर व्हाट. लेट अस लुक एट द सेकंड एग्जांपल. राइट,
अब हमारे पास अगेन एक 90 मेजर है, एक एंगल इज 45, तो द थर्ड वन वुड डेफिनेटली बी 45. ठीक है, 45, 45, 90, x and x under root 2. हमें 90 के ऑपोजिट वाली साइड गिवन है एंड वी आर टू फाइंड द अदर टू साइड्स, दिस वन एंड दिस वन. 90 के ऑपोजिट इज 12 एंड वी हैव दैट 90 के ऑपोजिट वाली x अंडर रूट 2 है, पुट इट इक्वल टू 12. यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12 ओवर अंडर रूट 2. तो इसका क्या मतलब है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड दे बोथ आर 12 ओवर अंडर रूट 2, 12 over square root. Why do I keep saying under root? These are square roots too. ठीक है, उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास आ रही है. अब यहाँ पर एक हिंट हमें मिल रहा है कि यहाँ पे अंडर रूट 2 है, तो दिस इम्प्लाइज कि यहाँ पे 45, 45, 90 की रेशियो ही लगेगी. और 90 की ऑपोजिट वाली जो साइड है दैट इज 11 स्क्वायर रूट 2. दिस इम्प्लाइज x अंडर रूट 2 वुड बी इक्वल टू 11 square root 2. X is 11. This implies the remaining two sides opposite to the angle 45 and the angle 45. They both are 11. That's about it.